Rahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today I will teach you about teaching tools. These are the main objectives of the study. After study the material, students will be able to explain the teaching tools, identify the audiovisual materials, discuss the different kinds of audiovisual aids, pinpoint the preparation of audiovisual activities and evaluate the planning to use the material. Let's start with some overview. Teaching tools are teaching aids that classroom teachers employ to help their students learn quickly and thoroughly. A teaching tool can be as simple as a chalkboard or as complex as a computer program. Because every individual learns in a different way, teachers rely on these tools to explain concepts to students with a wide variety of learning needs. Teaching tools are crucial for educators as they are keys in differentiating instruction for all types of learners. As we all know that today's age is the age of the science and technology, the teaching learning programs have also been affected by it. The process of teaching learning depends upon the different types of teaching tools available in the classroom. So what is the significance and importance of teaching aids and teaching tools? Okay, today is the time of technology, so it is very important to implement all these teaching audiovisual aids in a learning situations in a practical life in a classroom level to make sure about the effectiveness of teaching and learning. So इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी वो कह रहे हैं मद्देनज़र रखना चाहिए और अपनी आप टीचिंग टूल्स जो है वो आपकी टीचिंग को इतना स्मूथ और इजी बनाते हैं जितना एक आप बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या पेपर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह ये इतने कॉम्प्लेक्स भी हैं कुछ टीचिंग टूल जिस तरह कि आप किसी प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को लर्न करते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न दौर की जो होती है ज़रूरियात है, मॉडर्न एरा है कि टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं करेंगे या अपने क्लासरूम लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम जो है वो तरक्की से बहुत दूर रह जाएंगे जिद्दत को हम अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे। सो इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज मटीरियल इन आवर लर्निंग प्रैक्टिकल और क्लासरूम लेवल। द टीचिंग tools develop the proper image when the students see, hear, taste and smell properly. Teaching tools provide complete examples for conceptual thinking. The teaching tools create an environment of interest for the students. Teaching tools helps to increase the vocabulary of the students. Teaching tools is also called as teaching aids. ठीक है, तो टीचिंग टूल्स क्या है, वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा आपके लर्निंग एनवायरनमेंट को इतना बूस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स का क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट कि उनकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करते हैं, उनके विजन को ब्रॉड करते हैं और स्टूडेंट्स को जो जितने आप टीचिंग एड्स ऐड करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग में उतनी आप इफ़ेक्टिव लर्निंग भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की ज़्यादा आप वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं, इफेक्टिव लर्निंग जो है कोई कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नीड एंड इम्पॉर्टेंस। टीचिंग एड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स are as follows: motivation, clarification, discouragement of cramming, increase the vocabulary, saves time and money, classroom live and active, audios, dullness, यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस और नीड क्या है कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेशन लेवल हाई कर सकते हैं, क्रैमिंग को डिस्करेज कर सकते हैं, उनकी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं, लेस टाइम में और लेस मनी के साथ आप जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चों को एक लाइवली और एक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अवॉइड डलनेस यानी बोरियत का आंसर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और मैक्सिमम सेंस यानी अपनी सेंसेस को ब्रेकआउट ला के जो है बच्चे अपनी इमेजिनेशन से अपनी सेंसिटिव मोटर स्किल और कोग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के थ्रू चीज़ों को परसीव करके भी सीख सकते हैं। सेविंग टाइम एंड एफर्ट, फिक्सिंग एंड रिकॉलिंग द नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एनकरेजिंग एक्टिविटी, इंक्रीज वोकेबलरी ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो ये सम अदर पॉइंट्स कि आप लेस टाइम में आप ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को इंकरेजमेंट दे सकते हैं, उनके सेंस ऑफ एबिलिटी उनका ब्रॉडर विजन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को और वोकेबलरी स्टूडेंट्स की इन्हांस कर सकते हैं। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स। ऑडियो विजुअल एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स एंड टीचिंग बेस्ड टूल हैं। विजुअल एड्स, द एड्स which use sense of vision are called visual aids. For example, actual objectives, models, pictures, charts, map, flashcard, flannel board, bulletin board, chalkboard, overhead projector, slides, etc.
आउट ऑफ दीज ब्लैक बोर्ड एंड चाक आर द कॉमनेस्ट वंस। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है जिसमें ब्लैक बोर्ड या चाक यूज़ किया जाता है, उससे हटके वो कहना डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो कि टीचिंग टूल को जो है इफेक्टिव बना सकती हैं। ऑडियो एड्स, द एड्स दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हेयरिंग आर कॉल्ड द ऑडियो एड्स। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो एड्स। ऑडियो विजुअल एड, विजुअल में क्या होता है, इसमें आप विजन भी कर सकते हैं, सिर्फ उसको सुन नहीं सकते, आप उसको देख भी सकते हैं। द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हेयरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स ETC। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स का जो एक मोटिवेशन लेवल भी उनका इन्हांस रहता है, साथ में उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती है कि वो क्या देखने जा रहे हैं और किस चीज़ को किस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं। टीचिंग बेस्ड टूल, since the dawn of the technology age, computers have proved to be the most multifaceted teaching tool available. With technology like digital video presenters, PowerPoint presentations, ठीक है, वो कैसे आप PPT स्लाइड्स बनाती हैं, PowerPoint पे बनाती हैं, इस तरह आप ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड आप जब काम करते हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी को जब अपनी टीचिंग के साथ आप इंटरलिंक करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप अपनी अवेलेबल टूल्स और अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप अपनी इफेक्टिव लर्निंग को जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं। Selecting the audio visual materials. Audio visual aids should be integrated with learning, should be according to the age, intelligence and experience of the students, should be suiting the physical, psychological, intellectual and social development of the group. Language should be familiar and understandable, should be accurate, truthful and realistic, should be motivational and high informative, शुड बी अवेलेबल इन द नीड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हाईली मोटिवेट करें स्टूडेंट को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो आप सबसे पहले ये तो ये कि आपका जो मटेरियल है वो कंसाइज होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए आपकी लर्निंग के साथ जो भी आप मटेरियल ऑडियो विजुअल एड्स में आप यूज़ कर रहे हैं। सेकंड थिंग, वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि आप बच्चों के इंटरेस्ट को, उनके मेंटल कैलिबर को, उनके इंटेलिजेंस लेवल को, उनके एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखें कि कौन से एज ग्रुप के लिए आप कौन सा लर्निंग मटेरियल सूटेबल है और किस ग्रुप को, किस एज लेवल को आप पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या साइकोलॉजी है और कितनी उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, उनकी सोशल डेवलपमेंट कितनी हो सकती है इससे, और मतलब उनका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कितना है, कितनी कैपेबिलिटी है। आप कहीं उन पर ज़्यादा ओवर बर्डन तो नहीं कर रहे, आप इतना ऐसा लर्निंग मटेरियल तो नहीं सिलेक्ट करें जो उनकी एज के अकॉर्डिंग ना और वो ज़्यादा उसको बर्डन फील करें। ठीक है, तो आपको मटेरियल जो है वो सिंपल भी होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, थोड़ा इसमें रियलिस्टिक अप्रोच यूज़ करें, एक्यूरेट होना चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेशन लेवल जो है वो भी हाई होना चाहिए और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें कम टाइम में स्टूडेंट्स को। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनकी नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ों को मद्देनज़र रखें। प्रिपेयरिंग फॉर द ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़. The key to preparing effective audio-visual aids is to remember that they are only aids. Their role is to add as visual dimension to the points that you made orally. They cannot make those points for you, they can only reinforce them. We can use them to summarize or show the sequence of content. We can use them to visually interpret statistics by preparing charts and graphs that illustrate what you will say. We can use them to illustrate and reinforce your support statements. We can use them to add visual clarity to your concepts and ideas. We can use them to focus the attention of the target group on key points. और वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़ को आप डेवलप करती हैं तो कुछ पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखें कि एक तो कंटेंट में सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, आप आसान से मुश्किल यानी डिडक्टिव रीजनिंग को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपने जो भी स्टूडेंट्स को आप ये मटेरियल प्रोवाइड करें आप उनको नॉलेज किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, आप उनको रेनफोर्समेंट दे रहे हैं या आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं और जो आप समझाना चाह रहे हैं, आपके स्टेटमेंट, आपके चार्ट्स या जो भी अपनी एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं, क्या वो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही, उसमें क्लैरिटी है, उसमें सीक्वेंस है, उसमें कॉन्सेप्ट है, उसमें आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट समझाना चाह रहे हैं, वो आपने पिन पॉइंट को ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी एक्टिविटीज़ को आप प्लान करें। वी शुड नॉट प्रोजेक्ट कॉपीज़ ऑफ प्रिंटेड और रिटन टेक्स्ट. Instead, summarize the information and show only the key points on the visual aids. If the group must read every word, use handouts for reading either before or after your presentation. Do not put yourself in the role of adding your visuals. A presentation is primarily an oral form of communication.
If your only function is to read the information on your overhead or slides, the target group will becomes easily bored. Do not use copies of your transparencies as handouts. They reinforce what you are saying. They don't say if you for you, it for you. If you want to your target group to remember what you meant, you will need to provide written text in addition to any key points summarized or charts that you need for your transparencies. Do not use charts, graph, tables that contain more information that you want to provide. The group will have difficulty focusing on the point that you are trying to make. इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट बताया कि अब आप जब एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं तो आपने जस्ट एक कोई जैसे कॉपी पेस्ट मटेरियल को आपने यूज़ नहीं करना या आपने चीज़ों को समराइज़ नहीं करने की कोशिश करनी, बल्कि आपने देखना है कि आप अपनी जो ऑडियो विजुअल एड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो आप बात समझाना चाह रहे हैं कितनी ऑथेंटिक, कितनी आप उसको कंसाइज करके अपने पॉइंट्स को आप अपने ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को आप कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कहने हैं कि जस्ट आप अगर स्लाइड रीडिंग करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे या ओवरहेड प्रोजेक्ट या स्लाइड्स पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स जो या ऑडियंस है आपकी वो बोर हो जाएगी। ये इसी तरह आपके अगर आपको हैंड आउट्स या उनको कोई पॉइंट्स आप समझाना चाह रहे हैं तो उनको रिटन फॉर्म में समझाए कि आपका एक्चुअल मीनिंग क्या है और आप क्या उनको समझाना चाह रहे हैं, आपके पॉइंट्स क्या हैं, कौन से आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहे और स्टूडेंट जो है वो बोरियत भी महसूस ना करें। इसके अलावा वो कहते हैं कि आप चार्ट, ग्राफ और टेबल्स को यूज़ ना करें क्योंकि इसमें एडिशनल आप ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और इसमें जो आप कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं उससे उनकी जो उनका माइंड है या उनकी अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्ट एड्स हैं और नॉन प्रोजेक्ट एड्स हैं। प्रोजेक्ट एड्स आर दोज विच रिक्वायर्स प्रोजेक्शन मटेरियल और एनी इलेक्ट्रॉनिक पावर्स। Non-projected aids are those which require no projections material or any electric power। ठीक है, दो तरह की इसकी टाइप होती है। एक तो ये जिसमें आप आईसीटी को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आप जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड एड जो है यूज़ कर रहे हैं। दूसरी नॉन प्रोजेक्टिव एड है जिसमें आप चार्ट्स बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक पावर्स को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि आप उसके बगैर बच्चों को जो है ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड, मार्कर, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, जो कि हमारा बड़ा ट्रेडिशनल एक टीचिंग का स्टाइल है जिसमें हम बोर्ड और मार्कर को यूज़ करते हैं। चार्ट्स, पोस्टर, मैप्स, ग्राफ्स एंड मॉडल्स। सबसे पहले हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे रैंडमली वन बाय वन कि सबकी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों टीचिंग लर्निंग एड्स में इनकी इंपॉर्टेंस का यूज़ किए जाते हैं। चार्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्टोरियल, ग्राफिक, न्यूमेरिकल और वर्टिकल मटेरियल विच प्रेजेंट्स अ क्लियर विजुअल समरी। ठीक है, जिसमें आप विजुअल सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चों को कोई चीज़ समझाते हैं, कंसाइज करके, ड्रॉ करके, विजुअलाइज करके, ग्राफिंग करके, न्यूमेरिकल डाटा को पुट करके, समराइजिंग और कंपेयरिंग on contrasting or performing other helpful services in explaining subject matter. The main function of the chart is always to show relationships such as comparisons, relative amounts, developments, process, classification and organization। ठीक है, इसमें वो कहने कि हमेशा आप किसी भी चीज़ का या कंपैरिजन कर रहे होते हैं या आप कुछ रिलेशन शो कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल अमाउंट्स को क्वांटिटेटिव फॉर्म में आप शो कर रहे होते हैं या किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो चार्ट बेसिकली विजुअल या आप उसको रिटन फॉर्म में भी चीज़ों को उसमें डिपिक्ट कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं चार्ट के? स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड, एजुकेशनल वैल्यू, टीचर मेड, एनी साइज, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इजी टू कैरी। टाइप्स क्या हैं चार्ट्स की? पिक्चर चार्ट्स, टाइम चार्ट्स, टेबल चार्ट्स, ग्राफिक चार्ट्स, फ्लो और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, ट्री चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। Uses of charts: motivates the students, shows continuity in the process, shows relationships by mean of facts, figure and statistics, presents matter symbolically, presents abstract ideas in visual form, summarize information, shows the development of structures, creates problems and stimulates thinking. Limitations of chart: limitations क्या है इनकी? material for preparing the charts, time taking to prepare, charts only emphasize the key points, charts lose their charm, poor selection of color scheme। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी उन्होंने बताई हैं, कुछ इसके यूजेस भी बताए हैं कि किस तरह से आप इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके देखेंगे कि जहाँ पे इनके यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं, एक तो समराइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देते हैं और आपको
जो भी आप मीनिंग या टर्म्स या फैक्ट्स एंड फिगर समझाना चाह रहे हैं उसको आप शो कर सकते हैं, बट दूसरी तरफ उसकी लिमिटेशंस हैं कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा आपको इस पर मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए आपको देखना पड़ता है कौन सा मटेरियल आपने किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट करना है। समटाइम वो चार्ट्स हैं वो उस तरह से आपको आपकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती और अपना चार्म लूज़ भी कर देती हैं, या आपकी कलर स्कीम अच्छी नहीं होती, तो इस तरह से भी उसकी डिलिमिटेशंस जो है वो शो हो रही होती हैं। पोस्टर्स, a poster is a pictorial device designed to attract attention and communicate a story, a fact, an idea or an image rapidly and clearly. Goods Dictionary of Education, a poster is a place card, usually pictorial or decorative, utilizing an emotional appeal to convey a message aimed at reinforcing an attitude or urging a course of action. ठीक है, अब वो कहने कि पोस्टर क्या होता है जिसके अंदर आप कोई इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी फैक्ट्स को, कोई आइडिया को, कोई स्टोरी को, कोई इमेज को आप शो कर सकते हैं, और प्लेस कार्ड के थ्रू आपके पास पोस्टर की शक्ल में आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मैप्स क्या होते हैं? मैप्स कॉन्स्टिट्यूट एन indispensable aid in teaching many subjects like geography, history, economics and social studies. The learning of these subjects become unreal, inadequate and incomplete without map media. A resourceful teacher turn the fear of map into the genuine love or by motivating the students. ठीक है, तो कहने की कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैप्स जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसके बगैर जो है आपका नॉलेज ही कंप्लीट नहीं होता, और स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जो है टीचर्स को, अच्छे टीचर जो हैं अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। Graph is defined as a visual representation of numerical data. Graph is fundamentally a tool for expressing number relationships, which is much easier to visualize than can be done if the statement were made only in words and figures. अब वो कह रहे हैं कि ग्राफ में आप यूजुअली आप न्यूमेरिकल फिगर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, इमेजेस को, वर्ड्स को, फिगर्स को, ये फ्लैट पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और इसमें अफेक्टिव लर्निंग के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर कंट्रास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स को। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन द केस ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट which can be assembled and taken to pieces in front of the audience. ठीक है, मॉडल्स में वही कह रहे हैं कि आप एक सामने आप मॉडल दिखाते हैं कि जी ये चीज़ इस तरह से है, और स्टूडेंट्स को एक क्लियर आइडिया हो जाता है, और जिस ना कोई मेडिकल साइंसेस में और डिफरेंट फील्ड्स में ये छोटे लेवल पे बच्चों को मॉडल्स के थ्रू समझा सकते हैं, ताकि वो चीज़ को वो सामने अपने देखते हैं उसका सैम्पल, तो उनको आइडिया हो जाए क्लियरली। आपको इसमें पार्ट्स नज़र आ रही हैं क्या मॉडल में आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। वेंट्रिकल आर्टिकल्स आप डिफरेंट जो है वो हार्ट की जो है आप उसकी पीसीस को सेपरेट कर करके बताने के जी ये कौन सी वेन्स है और ये क्या इसका फंक्शन है। टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स containing information about a particular subject organized in a manner calculated to make presenting the information easier. Teacher can read a textbook to confirm or expand their personal knowledge and or assign reading from a textbook for students to complete. अब बुक क्या होती है? बुकिश नॉलेज जो है हर लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए जो है टेक्स्ट बुक जो है वो प्रिपेयर की जाती है, करिकुलम डेवलप किया जाता है, तो वो कहने कि ईजियर वे होता है कम्युनिकेट करने के लिए कि टीचर जो है वो उससे रीड करती है टेक्स्ट बुक से और एक्सप्लेन करती है, और अपने पर्सनल नॉलेज और रीडिंग टेक्स्ट बुक के थ्रू जो है बच्चों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। हैंडआउट्स आर समटाइम्स यूज्ड एज विजुअल एड्स. दिस इज़ अ मिस्टेक. Avoid handouts during your presentation if at all possible. You, the presenter, are the most important thing to focus on and handouts are distractions from you. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हैंडआउट्स को अगर आप समझ रहे हैं कि कोई विजुअल एड है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अगर आप अपने हैंडआउट्स पे रिलाई करेंगे तो आपकी अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज़ को आपने कन्वे करना है, किस चीज़ को आपने फोकस करना है, किस चीज़ को आपने कॉन्सेप्ट देना है, किस चीज़ का आपने समझाना है, तो आप बजाय इसके कि आप हैंडआउट्स पे रिलाई करें, आप जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि एक्टिवली स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स जो है आपकी बात को अंडरस्टैंड करें और फॉलो कर सकें। ऑडियो विजुअल एड्स में प्रोजेक्टर्स हैं. प्रोजेक्टर्स एड्स वी मीन दोज एड्स
where a bright light is passed through a transparent picture and by means of a lens and a large picture is thrown or projected on the screen. ठीक है, तो कहने के लेंस के थ्रू जब आप इस पर लाइट इफेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट लाइट, तो इसमें से आपको इमेज जो है वो नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर, आपको एनलार्ज करके इमेज नज़र आता है, जो भी आपने, वो चाहे वो हैंड राइटिंग है, वो चाहे कोई इमेज है, तो वो आपको प्रोजेक्टर के थ्रू नज़र आता है. प्रोजेक्टर्स आर एन इंक्लूसिव टूल इन द क्लासरूम एनेबलिंग द टीचर्स टू ड्रॉ ऑन मल्टीपल सोर्स ड्यूरिंग द लेसन एंड टू इंकरेज स्टूडेंट्स इन अ मोर इफेक्टिव लर्निंग. इफेक्टिव लर्निंग के लिए वो कह रहे हैं कि क्लासरूम लेवल पे प्रोजेक्टर्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बच्चों को मोटिवेट कर सकें और इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें. यूज़ क्या है प्रोजेक्टर्स के? ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कुछ पॉइंट्स उन्होंने आपको बताए हैं. कीप द स्क्रीन अबव द हेड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. कीप द स्क्रीन इन फुल व्यू ऑफ पार्टिसिपेंट्स. मेक श्योर यू आर नॉट ब्लॉकिंग एनी वंस व्यू व्हेन प्रेजेंटिंग. Darken the room appropriately by blocking out sunshine and dimming nearby. Turn the screen off between slides if you are going to talk for more than 2. Talk to audience not to the screen. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कुछ ये आपके पास प्रिंसिपल है, जब भी आप प्रेजेंटेशन को आप देते हैं तो आप कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि आप, एक तो ये कि आप के जो व्यू है पार्टिसिपेंट को क्लियर होना चाहिए और उनके सर से अबव होना चाहिए स्क्रीन, ताकि ये ना हो कि पीछे वाले बच्चों को स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. और आप उसको, रूम आपका डार्क होना चाहिए ताकि सनलाइट जो है वो उसको डिस्टर्ब ना कर सके. और मेक श्योर कि कोई आप ब्लॉक ना हो रहा किसी का भी. आप कर अपनी स्लाइड के सामने तो नहीं खड़े प्रेजेंट कर रहे, या प्रोजेक्टर के सामने तो नहीं आ रहे कि आपकी वजह से उनका जो है वो इंटरेक्ट नहीं हो रहा बच्चों का, वो देख नहीं पा रहे स्क्रीन को. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए. और आप ऑडियंस से बात करें तो ऑडियंस के साथ आप डायरेक्टली आप कम्युनिकेट करेंगे, बल्कि आप स्क्रीन को रीड नहीं करेंगे. पर्पस क्या है इसका? टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स एंड सीक्वेंस इन अ सब्जेक्ट मैटर एरिया. टू मेक मार्जिनल नोट्स ऑन द ट्रांसपेरेंसीज फॉर यूज़ ऑफ द टीचर दैट कैन कैरी विदाउट एक्सपोजिंग दैम टू द क्लास. टू टेस्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वाइल अदर क्लासमेट्स ऑब्जर्व. टू शो रिलेशनशिप बाय मीन्स of transparent overlays in contrasting color. To give the illusion of motion in the transparency. ठीक है, वो कह रहे हैं प्रोजेक्टर यूज़ करने के जो आपके इसके बेसिक पर्पस क्या हैं, वो यही है कि आप कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो सीक्वेंशियल होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर जो भी आप उनको कन्वे करना चाह रहे हैं. और इसके अलावा टीचर अपने हैंड आउट्स बना सकती हैं ताकि अपनी आसानी के लिए अपने पॉइंट्स को लिख सकती है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज कर सकती हैं क्लास के अंदर. और एक आप जो है इलुस्ट्रेट कर इल्यूजन ऑफ मोशन जो है वो भी बरकरार रख सकती हैं जब भी आप अपने प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट करते हैं. मल्टीमीडिया क्या है? Fenrich 1997, according to him, multimedia is the exciting combination of computer hardware and software that allows you to integrate video, animation, audio, graphic and text resources to develop effective presentations on an affordable desktop computer. ठीक है, तो कह रहे हैं कि मल्टीमीडिया ऐसा कॉम्बिनेशन हार्ड और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें आप ऑडियो भी देख सकते हैं, विजुअल इमेजेस भी दे सकते हैं, एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट सोर्सेज को आप यूज़ करके अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं. Advantage of audiovisual aids: it helps to make learning process more effective and conceptual. It helps to grasp the attention of students. It builds interest and motivation, teaching students learning process. It enhances the energy level of teaching and learning of students. It is even better for overburdened classrooms. It provides students a realistic approach and experience. These are some basic advantages of audiovisual aids. Build interest and motivation, enhance energy level of teaching, easy to follow, students feel more engaged, easier to explain or put things in perspective, easier to remember. Disadvantages of audiovisual aids: technical problems, students distractions, expensive, time consuming, need space, convenience. These are some disadvantages कि समटाइम टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या आप इतने आईटी यूज़र नहीं हो सकते तो आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टाइम टेकन हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, आपके अप्रोच में नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर. होप सो यू कैन अंडरस्टैंड today's lecture. If you have any question you may ask in a comment section. Allah Hafiz.